and gentlemen, may I now draw your attention to the parade. The parade to IC, Shri Amandeep Singh Dhaliwal. On this order, all the markers in their ceremonial attires are marching to their respective places on the inspection line. Following the markers are now the 8 contingents representing different sectors of CISF. As they march smoothly to their assigned places, the band plays the tune Bharat Ki Jawan. इन जोश से ओतप्रोत जवानों को देखकर इस समय यह जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है। वो देखो जवानों का कारवां आ रहा है। हम वो हैं जो खिजा को बहारों में बदल सकते हैं। इरादों में रखते हैं हम औलाद का सैलाब, दुश्मन को मसलते हम ऐसे जामा। सभी टुकड़ियां अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए dresses of the parade from the center. परेड द्वारा परेड कमांडर का सम्मान सलामी सबसे किया गया। इसके पश्चात परेड ट्वाइसी परेड की बागडोर परेड कमांडर के हाथों में सौंपने के लिए आगे बढ़ते हुए Now, Nishan Toli will march into the parade ground. The Nishan Toli is entering the parade ground from our left under the command of Shri Zahid Ali, Assistant Commander. The Nishan or the colours were presented to CISF on the 10th March 1994 by the then Honourable Prime Minister of India on this very parade ground. Colors reflect the spirit of a young, gallant security force. The ivory white silk base represents industrial peace, and out of 6 ribbons, 3 are inscribed. The first with reference to Durgapur steel plant, where in 1970 CISF tackled the first violent situation. The second to the industrial accident at Nagothane Petrochemical Complex. And the third represents the remarkable performance of CISF at Cambodia during the United Nations peacekeeping operations. The 13 formations of the force are represented in the flag by their respective formation signs.
कुछ ही समय में हमारे बीच महानिरीक्षक उत्तराखंड श्री अनंत कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, उपस्थित होंगे। परेड द्वारा महानिरीक्षक महोदय का अभिवादन जनरल सैल्यूट से किया गया। Let me give a brief introduction of the contingents. The first contingent, equipped with AK-47, represents the North Sector, is led by Shri Surinder Sonkaria, Assistant Commandant. This sector provides security in the northern regions from Jammu and Kashmir to Uttar Pradesh, covering 8 states. This includes important installation in terrorist-prone regions of Jammu and Kashmir, hydroelectric projects, and historical heritage like Lal Killa and the Taj Mahal. दूसरी टोली पूर्वी क्षेत्र की है, जिसकी कमान संभाले हैं श्री सिद्धार्थ पॉल, सहायक कमांडेंट। बिहार से लेकर उड़ीसा तक के 3 राज्यों में स्थित नक्सलवाद से प्रभावित प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्वी क्षेत्र के कंधों पर है। SLR से लैस तीसरी टुकड़ी पश्चिमी क्षेत्र की है, जिसकी कमान संभाले हैं श्री सोहनलाल, सहायक कमांडेंट। यह क्षेत्र पश्चिम में स्थित 5 राज्यों में अति संवेदनशील इकाइयों जैसे परमाणु ऊर्जा, रिफाइनरी एवं बंदरगाहों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। नारी शक्ति का प्रतीक MP5 से लैस चौथी टोली एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप का दस्ता है। संचालन का दायित्व है सहायक कमांडेंट एकता सिंह के कंधों पर। इस बल में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। महिलाओं की तैनाती मूलतः एयरपोर्ट एवं दिल्ली मेट्रो में है। उनके योगदान को रेखांकित करती यह टुकड़ी। परेड के मध्य में सुंदर पोशाक में सुसज्जित CISF के 73 सदस्यों का यह बैंड उप निरीक्षक नीमा शेरपा के नेतृत्व में। The 5th contingent of SSG, equipped with MP5, is led by Shri Kumar Abhishek, Assistant Commandant. They are assigned these duties after rigorous and specialized training. The 6th contingent represents Northeast Sector, comprising 8 states. Oil establishments located in insurgency-infested states of Northeast are guarded by this sector and is led by Shri L.T. Khongsai, Assistant Commandant. The 7th contingent representing the South Sector is led by Shri Prab Simran Singh Grewal, Assistant Commandant. The South Sector, comprising of 4 states, secure mainly space installations and seaports. And the 8th contingent, which is a fire contingent, is led by Shri B.P. Yadav, Assistant Commandant. The fire wing of CISF gives protection to 91 fire establishments. In 2006, VIP security duties were assigned to the CISF. The Director General CISF, Shri Arvind Ranjan, has just arrived. General salute!
The fanfare of the buglers heralds the arrival of our chief guest, Honorable Union Home Minister, Government of India, Shri Rajnath Singh. आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री दिलीप कुमार कमांडेंट चुस्त व सधे हुए कदमों से मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने हेतु सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए 11 राष्ट्रपति अधिकारी, 25 अधीनस्थ अधिकारी, 412 अन्य पद स्थापना दिवस परेड पर परेड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, निरीक्षण वाहन में सवार हुए। उनके साथ हैं श्री अरविंद रंजन, दर्शक दीर्घा के सामने से होकर गुजरता हुआ, जहां दर्शकों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया। किसी भी जवान के लिए परेड निरीक्षण वह क्षण होता है जब परेड के जवान अपना निरीक्षण करवाते हुए मुख्य अतिथि महोदय के सबसे नजदीक होते हैं। ये बहुत ही रोमांचक और गौरव भरा क्षण होता है। इस समय मुख्य अतिथि महोदय के साथ सूर्य, पृथ्वी, वायु, आकाश, पूरी कायनात सीआईएसएफ के उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है। परेड कमांडर ने सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का आभार प्रकट किया। Marching confidently to the beats of the drum, marching in unison, heralding a dawn of the new era. Smartly dressed up, energetic, young, and smart member of the force are marching with their morale high to the tune of band in proper alignment. परेड कमांडर के आदेश पर परेड पूरे जोश व उल्लास के साथ आगे बढ़ रही है। मध्ययुगीन भारत की भव्यता एवं स्थापत्य शैली की छाप लिए दुर्ग प्राचीर और उसके सामने एक आधुनिक एवं सुसज्जित पट।
पथ का उद्देश्य नहीं है शांति मार्ग में रुके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। आज इनका आत्मविश्वास और आंखों से झलकता उत्साह देखते ही बनता है। यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हर चुनौती का सामना पूरे जोश व साहस से करेंगे और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नाम ऊंचा करेंगे। बैंड द्वारा बजाई जा रही मधुर धुन पर आगे बढ़ते ये नौजवान मानो अपनी एकता का परिचय देते हुए कह रहे हो, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, रुक नहीं सकता कोई खुदा हवा के सामने, क्या फौजी लेकर आए दुश्मने हमनो हमा, रुक नहीं सकता हमारी एकता के Beautiful march past is a testimony to the level of professional competence and standing acquired by the force over the last few decades. बैंड की मधुर धुन सारे जहां से अच्छा पर अनुशासित ढंग से आगे बढ़ते ये नौजवान सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर श्री दिलीप कुमार कमांडेंट और परेड 2IC श्री अमनदीप सिंह धालीवाल उप कमांडेंट। The first contingent, equipped with AK-47, represents the North sectors led by Shri Surinder Sonkaria, Assistant Commander. SLR से लैस दूसरी टुकड़ी पूर्वी क्षेत्र की है, जिसकी कमान संभाला है श्री सिद्धार्थ पॉल, असिस्टेंट कमांडेंट ने। Shri Sohan Dal, Assistant Commandant, is leading the third contingent. चौथी टोली MP5 से लैस नारी शक्ति का प्रतीक। संचालन का दायित्व है सहायक कमांडेंट एकता सिंह के कंधों पर। The Nishan Toli under the command of Shri Zahid Ali, Assistant Commander. पांचवी टोली MP5 से लैस SSG का दस्ता है। इसकी कमान है श्री कुमार अभिषेक, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Shri S.D. Khomsai, Assistant Commandant, is leading the 6th contingent. The 7th contingent, representing the South sector, is led by Shri Prabhasubramanian Singh Grewal, Assistant Commandant. Now we have the 8th contingent, which is the fire contingent, is led by Shri B.P. Yadav, Assistant Commandant. The fire wing of CISF is giving protection to 91 fire establishments. जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी परेड बहुत ही सुंदर तरीके से कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते हुए बढ़ी चली जा रही है, अपने दृढ़ इरादों और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए। शीश उठाए बढ़ते हैं हम अपने पथ पर शान से, उड़ने लगी गंध तहजीबी मेरे हिंदुस्तान से, गाते हैं हम मधुर रागनी अमन भरे संदेश की, सींचेंगे जीवन देकर आजादी अपनी देश। समंदर की लहरों की तरह लहराते हुए इन बल सदस्यों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में है। आज ये पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भरकर भारत के गौरव एवं गरिमा को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प और हर ऐसा कार्य करने को उत्सुक जिससे वीरों की भूमि कहे जाने वाले भारत का नाम गौरवान्वित हो। It's every soldier's ultimate dream to lay down his life in service to his nation. Describing the sentiment, the famous English poet Rudyard Kipling wrote, "Give me to love and love in the old bold fashion, a soldier's billet at night and a soldier's ration. A heart that leaps to the fight with a soldier's passion, for I hold as a simple faith there is no denying. The trade of a soldier is the only trade worth plying. The death of a soldier is the only death worth dying." Unquote. नई जिंदगी नया सवेरा, नए विचारों की है धारा, नवयुग की बेला में जागा CISF का प्रांगण सारा। स्वागत वीरों आज तुम्हारा, स्वागत वीरों आज तुम्हारा।
each minute and each second makes me proud to be a part of a country called India. समीक्षा क्रम में आने से पूर्व परेड कमांडर द्वारा परेड को सजाया गया। समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई पूरी परेड। जनरल सल्यूट। May I now request Shri Arvind Ranjan, Director General CISF, to kindly deliver his welcome address. केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, सेवानिवृत्त एवं पूर्व महानिदेशक एवं अन्य पदाधिकारीगण, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, सीआईएसएफ के मेरे सहकर्मी और उनके परिजन, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, सीआईएसएफ के 46वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मैं सीआईएसएफ परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सब के लिए गौरव का विषय है। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने यहां आकर हमारा मनोबल एवं उत्साह बढ़ाया है। सीआईएसएफ अपने देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। वर्ष 1969 में 3000 की छोटी सी संख्या से शुरुआत कर हमने पिछले 46 वर्षों में शानदार प्रगति हासिल की है। आज हमारे बल की नफरी 1,41,000 से अधिक हो चुकी है। हमने इस दौरान उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की हैं। अपनी कार्यदक्षता व विश्वसनीयता के फलस्वरूप आज सीआईएसएफ देश के हर कोने में स्थित 313 इकाइयों में सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हमारी उपस्थिति आज देश के सभी महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, स्टील, कोयला, तेल व ऊर्जा की इकाइयों, देश की धरोहर ऐतिहासिक इमारतें, ताजमहल, लाल किला, इसके अलावा सरकारी भवन, दिल्ली मेट्रो, सिक्के बनाने वाली मिंट, नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, प्राइवेट संस्थान, वीआईपी सुरक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में है। हमारी इकाइयाँ जम्मू कश्मीर के सीमा क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी स्थित हैं। हमारे बल के अधिकारी व जवान अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को अत्यंत परिश्रम व लगन से पूरा कर रहे हैं। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सीआईएसएफ का अपना फायर सर्विस विंग भी है। बल का फायर विंग भली भांति प्रशिक्षित एवं अच्छे उपकरणों से सुसज्जित है। विभिन्न उपक्रमों की 91 इकाइयों को हमारे बल का फायर विंग अग्नि सुरक्षा प्रदान कर रहा है। गत वर्ष फायर विंग ने कुल
4,528 फायर कॉल अटेंड करी तथा लगभग 138 करोड़ रुपए की संपत्ति को आग से बचाया। सीआईएसएफ कंटिंजेंट संयुक्त राष्ट्र मिशन हैती में वर्ष 2008 से लगातार तैनात है, बल्कि एक टुकड़ी नेपाल स्थित भारतीय दूतावास को भी सुरक्षा प्रदान कर रही है। वर्ष 2006 में हमारे बल के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप की स्थापना हुई थी। यह ग्रुप आज 35 विभिन्न श्रेणी के प्रोटेक्टीज को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हमारी लॉस्ट एंड फाउंड वेबसाइट हवाई यात्रियों को अपना सामान वापस दिलाने में बड़ी मददगार रही है। सीआईएसएफ ने विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा के दौरान विगत वर्ष में लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक का सामान यात्रियों को लौटाया एवं लगभग 19 करोड़ रुपए की संपत्ति हवाई अड्डा प्रबंधन के पास जमा करवाई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मेट्रो में लगभग 28 लाख यात्री तथा देश के हवाई अड्डों पर लगभग 5 लाख यात्री रोजाना सफर कर रहे हैं। यह अति संवेदनशील व महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जवानों की लगातार मुस्तैदी से लगभग 33 लाख यात्री सुरक्षित माहौल में प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं। सीआईएसएफ का मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा है। सुरक्षा में दृढ़ता तथा जनता के प्रति मित्रवत व विनम्र व्यवहार को प्राथमिकता देते हुए हमारा बल ड्यूटी विद स्माइल एंड कर्टसी के ध्येय के प्रति वचनबद्ध है। बल के लिए एक और उपलब्धि वर्ष 2014 में आम चुनावों तथा महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड विधानसभा चुनावों व आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में 481 कंपनियां मुहैया कराकर सीआईएसएफ ने निष्पक्ष चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हमारे बल के लिए गर्व का विषय है कि हमारे बल के 4 सदस्यों निरीक्षक ए.के. राय, उप निरीक्षक जे.बी. यादव, आरक्षक उत्तम बसुमतारी एवं आरक्षक कुलोधर दास को नक्सल हमले को विफल करने तथा डटकर मुकाबला करने, अदम्य साहस व पराक्रम के लिए राष्ट्रपति द्वारा वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष हमारे बल सदस्यों की अथक मेहनत व लगन का नतीजा है कि हमारे कंटिंजेंट को गणतंत्र दिवस परेड 2015 में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का खिताब दिया गया। यह गौरव सीआईएसएफ को वर्ष 2007 से चौथी बार प्राप्त हुआ है। बल के लिए एक और उपलब्धि निरीक्षक महावीर प्रसाद को राष्ट्रपति द्वारा गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में यह पुरस्कार पाने वाले वह प्रथम बल सदस्य हैं। खेल के क्षेत्र में भी हमारा प्रदर्शन सराहनीय रहा है। पिछले वर्ष हमारे खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 4 स्वर्ण, 1 रजत तथा 1 कांस्य पदक और इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों में 23 स्वर्ण, 9 रजत तथा 19 कांस्य पदक जीते हैं। आज के आधुनिक युग में विश्व के वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बल में क्षमता के विकास व बल सदस्यों को अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कुछ नई पहल की गई हैं। इसमें त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए 10-15 अलग अलग परिस्थितियों पर 1 मिनट ड्रिल का अभ्यास, विभिन्न स्थितियों में शांत कौशल प्रशिक्षण, क्रव मागा एवं महिला बल सदस्यों के लिए पिकेटी तेरेसिया काली मार्शियल आर्ट प्रशिक्षण, पार्कर प्रशिक्षण, एनएसजी, एनडीआरएफ, स्पेशल फोर्सेज और राज्य की विशेष बलों के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल, बीडीडीएस टीमों की क्षमता वृद्धि इत्यादि शामिल हैं। बल में एक रूपता तथा समन्वय लाने के लिए अनेक ऑपरेशनल वर्कशॉप की गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा प्रक्रियाओं में मानकीकरण और एक रूपता लाने के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व मैन पावर का संतुलित एकीकृत सुरक्षा समाधान एवं नई मानव संसाधन नीति का मानकीकरण प्रमुख हैं। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा सेल की स्थापना की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, कॉरपोरेट्स के साथ समन्वय बनाने के लिए
सेक्टर महानिरीक्षकों को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति करना प्रमुख है। इन सभी शुरुआतों का उद्देश्य बल के प्रत्यक्ष दृष्टिकोण में परिवर्तन और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए है। बल मुख्यालय में अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना का प्रस्ताव है, जो नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करने के साथ साथ आपातकालीन समय में आपदा प्रबंधन केंद्र की भूमिका भी निभाएगा। CISF ने हाल ही में सभी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ बल सदस्यों के लिए नए पहचान पत्र जारी करना प्रारंभ किया गया है, ताकि किसी भी अवांछित व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र का दुरुपयोग न किया जा सके। हमारी कंसल्टेंसी सर्विस को क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001:2008 सर्टिफिकेट दिया गया है। अब तक हम 111 सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को सिक्योरिटी तथा फायर कंसल्टेंसी सर्विस दे चुके हैं। इस वर्ष अब तक 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व परामर्श सेवाओं के माध्यम से भारत सरकार के कोष में जमा कराया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता के आकलन के लिए प्रगति मैदान में डिमॉन्स्ट्रेबल इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम फैसिलिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। CISF ने इस सुविधा केंद्र की शीघ्र स्थापना के लिए ITPO के साथ मिलकर इस सुविधा केंद्र की शीघ्र स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। CISF ने हवाई अड्डों और दिल्ली क्षेत्र में अपने बल सदस्यों के लिए आवासीय ज़रूरतों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण आवास संगठन की स्थापना, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की व्यवस्था इत्यादि के लिए पहल करी है। इस संबंध में हमें माननीय गृह मंत्री जी का प्रोत्साहन प्राप्त है। बल द्वारा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे बल में पारदर्शिता बढ़ी है। सभी सूचनाओं को हर एक बल सदस्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत IT इनेबल्ड सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। अब ईमेल द्वारा प्रत्येक बल सदस्य सीधे महानिदेशक तक अपनी परेशानियां पहुंचा सकते हैं, जिसके तुरंत निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश पारित किए जाते हैं। बल्क SMS द्वारा बल के प्रत्येक सदस्यों को बल की हर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। बल ने ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे बल के सभी सदस्यों को जोड़ा जा सके। सॉफ्टवेयर के द्वारा बल सदस्यों को मिलने वाले वस्त्र व उपकरण की हर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। बल में पहले GPF ट्रांसफ़र में अनेक परेशानियां थीं। इसे देखते हुए एक विशेष अभियान गृह मंत्रालय, NIC एवं CISF द्वारा चलाया गया। नए वेतन सॉफ्टवेयर के माध्यम से GPF का लेखा जोखा अपडेट किया गया। इससे प्रत्येक बल सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। जुलाई 2014 में GPF ट्रांसफ़र के 10,845 मामले लंबित थे, जिन्हें इस नए प्रयास के साथ 513 तक लाया गया है। भविष्य में इससे कोई भी ऐसा केस लंबित नहीं रहेगा। CISF वाइज वेलफेयर एसोसिएशन संरक्षिका बल सदस्यों एवं उनके परिवारजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें क्रैच, प्ले स्कूल, स्वच्छ भारत अभियान, कुशलता बढ़ाने वाली ट्रेनिंग, साक्षरता अभियान, महिलाओं एवं बेटियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, संरक्षिका शॉप्स, करियर मेला इत्यादि प्रमुख हैं। इन कार्यक्रमों से बल सदस्यों एवं उनके परिवारजनों को विशेष लाभ पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की CISF की सभी इकाइयों द्वारा बखूबी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत CISF द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 265 स्कूलों को एडॉप्ट करके स्वच्छता अभियान को लगातार चलाया जा रहा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बल ने सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को गृह मंत्रालय से मंजूर करने के बाद CISF में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर्वप्रथम CISF की इसी 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद के प्रांगण में इसे प्रारंभ किया जा रहा है। हम दूरदर्शन
व राज्यसभा चैनल के आभारी हैं कि आपने हमारे स्थापना दिवस को प्रसारण के लिए कवर किया, जिससे देश भर के दूर दराज के इलाकों में स्थित इकाइयों में तैनात जवानों एवं उनके परिवारजनों सहित पूरे देश को देखने का अवसर मिला है। हम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग के लिए भी आभारी हैं। महोदय, हम देश की सुरक्षा के बारे में सरकार की प्राथमिकताओं से पूरी तरह से अवगत हैं। इस शुभ अवसर पर मैं भारत सरकार तथा प्रत्येक देशवासी को ये आश्वासन देता हूँ कि CISF का प्रत्येक बल सदस्य अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी हर जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण की भावना से पूरा करेगा। अंत में एक बार पुनः मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगणों का इस समारोह में शामिल होकर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तथा पूरे बल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें हमेशा की भांति मिलता रहेगा। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस 2014 के अवसर पर जिन बल सदस्यों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, विशिष्ट तथा सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया गया है, उन्हें पदक प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। इंस्पेक्टर AK रॉय पदक ग्रहण करेंगे। श्री रॉय। सब इंस्पेक्टर JB यादव। श्री यादव। कांस्टेबल उत्तम बासुमतारी। श्री बासुमतारी। कांस्टेबल कुलोधर दास। श्री दास। President's Police Medal for Distinguished Service. Shri Anil Kishore, Deputy Commandant, Headquarters, New Delhi. Shri Kishore. Shri Rabindranath Badi, Assistant Sub Inspector, ASD Hyderabad. Shri Badi. Police Medal for Meritorious Service. Shri S. Devdatta Singh, IPS DIG DMRC, Delhi. Shri Singh. Shri Shikhar Sahai, DIG CCL Karkali. Shri Sahai. Shrimati Neeta Singh, DIG NCR Zone, New Delhi. Shrimati Singh. Shyamala Dinavahi, DIG Legal, Force Headquarters, New Delhi. Shyamala Dinavahi. Shri B.D. Sharma, Senior Commandant, SHEP Salal. Shri Sharma. Shri Sudarshan Malhotra, Deputy Commandant, MPT Goa. Shri Malhotra.
Shri N.S. Muralidharan, Assistant Commandant GPS New Delhi, Shri Muralidharan. Shri M. Purushottam, Assistant Commandant, Headquarters New Delhi, Shri Purushottam. Shri Sajan Singh Maravi, Sub-Inspector, 3rd Reserve Battalion, Bhilai, Shri Maravi. Shri Upen Deka, Sub-Inspector, NRL Numaligarh, Shri Deka. Shri P. Rajshekharan, Sub-Inspector, West Zone Airport Headquarters, Mumbai, Shri Rajshekharan. Shri Balvinder Singh, Assistant Sub-Inspector, PTPP Paricha, Shri Singh. Shri V. Raghu Kumar, Assistant Sub-Inspector, DMRC Delhi, Shri Kumar. Shri Keshav Prasad Yadav, Head Constable, RTC Deoli, Shri Yadav. Shri V. Rajan, Head Constable, ASG Calicut, Shri Rajan. Shri Dhaniram Sharma, Head Constable, ASG Hyderabad, Shri Sharma. Shri Shamugavelu Purnamalai, Head Constable, ISAC Bangalore, Shri Purnamalai. Shri Leeladhar Sharma, Head Constable, ASG Mumbai, Shri Sharma. Shri Yunus Ahmed, Head Constable, ASG Mumbai, Shri Ahmed. Shri K.C. Gopakumaran Nair, Head Constable, IG Mint Hyderabad, Shri Nair. Shri Pranavantu Mahakur, Head Constable, DSP Durgapur, Shri Mahakur. Shri Kuldeep Singh, Head Constable, ASG Mumbai, Shri Singh. Shri Mahanand Tiwari, Head Constable, BCCL Dhanbad, Shri Tiwari. Shri Ram Singh, Constable, Tradesman, Headquarters, New Delhi, Shri Singh.
विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति अग्नि सेवा पदक श्री अरविंद कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट KBUNL कांटी, श्री कुमार। श्री ज्ञानचंद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर KBUNL कांटी, श्री चंद। श्री संतोष कुमार, हेड कांस्टेबल TTPS दालचे, श्री कुमार। सराहनीय सेवाओं के लिए अग्नि सेवा पदक श्री सुधीर दिगंबर इंगले, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल फोर्स हेडक्वार्टर्स, श्री इंगले। श्री C नटराजन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर AUGPP इटावा, श्री नटराजन। श्री हम्बीर सिंह, हेड कांस्टेबल FSCI हैदराबाद, श्री सिंह। जीवन रक्षा पदक श्री अर्जुन सिंह, कांस्टेबल PNHCS चंडीगढ़, श्री सिंह। Thank you, sir. May I request our Honorable Chief Guest to kindly release the CISF Sentinel 2015, the magazine. Thank you, sir. थैंक यू सर। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। महानिदेशक CISF श्री अरविंद रंजन जी, सभी CISF के पूर्व महानिदेशकगण, अन्य सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के महानिदेशक एवं निवर्तमान महानिदेशक, CISF परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी महिलाएं एवं बच्चे, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों एवं अन्य विशिष्टजन और मेरे CISF के बहादुर नौजवानों, सबसे पहले तो मैं CISF के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आज आपकी परेड मैंने पहली बार देखी है। मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिस फोर्स का सर्वाधिक इंटरेक्शन लोगों के साथ हो, जिस फोर्स का सर्वाधिक इंटरफेस लोगों के साथ हो, उस पैरामिलिट्री फोर्स की परेड इतनी शानदार होगी, ये इसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं करता था। और सचमुच
आज जिस समय आपके महानिदेशक श्री अरविंद रंजन जी यह कह रहे थे कि गृह मंत्री जी के आने से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं, तो मैं इस परेड को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, मेरे आने से आप लोग गौरवान्वित नहीं हुए हैं, बल्कि आप लोगों के कारण मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आप लोगों के इस परेड को देखने के बाद। पिछले गणतंत्र दिवस के अवसर पर शानदार इसी मार्चिंग के कारण ही आपको मार्चिंग ट्रॉफी भी हासिल हुई है। केवल मैं ही आपके इस मार्चिंग की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार ने भी आपके इस मार्चिंग की प्रशंसा की है। शायद इसीलिए तो आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर बेस्ट मार्चिंग अवार्ड मिला है। भारत के भविष्य की बेहतरी के लिए जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी मैं सराहना भी करना चाहता हूं। कहीं चले जाइए, चाहे कोई एयरपोर्ट हो, चाहे कोई मेट्रो स्टेशन हो, चाहे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिक इंस्टॉलमेंट्स हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलमेंट्स हो, सभी जगह हमारे सीआईएसएफ के जवान बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं और सर्वत्र हमें प्रशंसा ही आपकी सुनने को मिलती है। और जब मैं कभी समाचार पत्रों में यह पढ़ता हूं कि सीआईएसएफ के जवान ने फला एयरपोर्ट से खोए हुए इस सामान को उस यात्री के घर पहुंचाया है और सही सलामत उसे पहुंचाया है, तो सचमुच मेरा सीना भी चौड़ा हो जाता है कि सचमुच मैं किस प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित मंत्रालय की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मुझे बेहद खुशी होती है। आप अपनी स्थापना के 46 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यदि क्रिकेट की भाषा में कहना हो तो मैं कह सकता हूं 46 पर भी आप नॉट आउट हैं। आज आपकी इस परेड को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि 46 के बावजूद आप नॉट आउट हैं। अब हाफ सेंचुरी की तैयारी कीजिए, यही अपील आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। और एक मॉडर्न हाईटेक पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में इमर्ज होकर आप आइए। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके महानिदेशक श्री अरविंद रंजन जी को कि जिन्होंने अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इस सीआईएसएफ को एक मॉडर्न हाईटेक पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में खड़ा करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। एक आम आदमी सीआईएसएफ के जवान से कहीं न कहीं मिलता है, मुलाकात होती रहती है, चाहे सरकारी इमारत हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अन्य कोई दूसरा कोई केंद्र क्यों न हो, चाहे वो पब्लिक सेंटर भी हो सकता है, प्राइवेट भी सेंटर हो सकता है, सभी जगह भेंट मुलाकात उसकी होती ही रहती है। और मैं देखता हूं कि वहां पर बखूबी सीआईएसएफ के जवान अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए यह दिखते हैं। और मैं यह भी जानता हूं कि आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार निरंतर होता जा रहा है, आपकी जिम्मेदारियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और केवल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स ही नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलमेंट्स का ही नहीं है, बल्कि अब तो नक्सल क्षेत्रों में भी आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी आप अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। इसकी भी हमें जानकारी है। केवल भारत ही नहीं, बल्कि मुझे यह भी जानकारी है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी सक्रिय भूमिका निभाने का काम हमारे सीआईएसएफ के जवान कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी तो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी आपकी जिम्मेदारी है, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। इस कारण मुझे बेहद खुशी है। और सीआईएसएफ के बारे में मैं कह सकता हूं कि यह एक डायनेमिक फोर्स है।
और जहां डायनेमिक फोर्स है वहीं पर मैं कह सकता हूं कि यह डाइवर्सिफाइड फोर्स भी है। और डाइवर्सिफाइड फोर्स इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहते हैं, फिर भी आपकी कार्य क्षमता पर कभी प्रतिकूल असर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि कोर कॉम्पिटेंस कुछ क्षेत्रों की सिक्योरिटी के मामले में आपका होना चाहिए। जैसे एक क्षेत्र का मैं नाम लेना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलमेंट्स के क्षेत्र में ही कोर कॉम्पिटेंस कैसे और अधिक डेवलप की जा सकती है, इसकी कोशिश हमारे सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा होनी चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आतंकवाद का संकट यह कितना बड़ा संकट है, भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यह आतंकवादी केवल इंसान को ही निशाना नहीं बनाते हैं, बल्कि हमारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक स्मारक होते हैं, उनको भी अपना निशाना बनाने की यह भरपूर कोशिश करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जिसमें सुरक्षा के मामलों में हमारे सीआईएसएफ के जवानों को कोर कॉम्पिटेंस हासिल हो। और मैं जानता हूं कि आप सबके अंदर वह ताकत है कि आप उनके मंसूबों को आप अपनी ताकत और अपनी कर्तव्य परायणता के आधार पर पूरी तरह नाकाम करने में कामयाब होंगे, यह मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। और सीआईएसएफ की सबसे बड़ी चुनौती फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सबसे बड़ी चुनौती आपकी है, क्योंकि छोटी सी भी यदि हमारे सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा चूक हो जाएगी तो मैं समझता हूं देश को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे खुशी है मेरे जवानों कि सीआईएसएफ के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। मुझे जानकारी दी गई है कि अंडर कवर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस जैसे अभियान भी इन नए अभियानों में शामिल हैं। अब अंडर कवर ऑपरेशंस इस अभियान में किस हद तक कामयाबी सीआईएसएफ को हासिल हुई है, अब यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इस संबंध में मुझे बहुत जानकारी हासिल नहीं है। लेकिन एक नया प्रयास सीआईएसएफ के द्वारा जो प्रारंभ हुआ है उसकी मैं सराहना करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के ऑपरेशंस में भी आपको निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी ही। और मैं यह मानता हूं कि सीआईएसएफ द्वारा इस हर महत्वपूर्ण स्थान का कम से कम वर्ष में 3 महीने पर तो नहीं लेकिन 4 महीने पर स्पेशल सिक्योरिटी ऑडिट की जानी चाहिए। यदि आप इस काम को कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी सफलता की डिग्री और अधिक बढ़ जाएगी। अब इस संबंध में फैसला करना है तो सीआईएसएफ इस ऑर्गेनाइजेशन को ही फैसला करना है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं तो क्या हम उसकी 4 महीने पर स्पेशल सिक्योरिटी ऑडिट कर सकते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या उन कमियों को सुधारने के लिए हम कुछ आवश्यक फैसले कर सकते हैं, आवश्यक कदम उठा सकते हैं। इस संबंध में यदि फैसला करना है तो आप सबको ही फैसला करना है। आपके महानिदेशक श्री अरविंद रंजन जी ने बताया कि सीआईएसएफ सरकारी और निजी क्षेत्र के करीब 111 से अधिक संगठनों को सिक्योरिटी की कंसल्टेंसी भी दे रहा है। और मुझे नहीं मालूम था कि सीआईएसएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे 111 से अधिक संगठनों को कंसल्टेंसी भी देने का काम कर रहा है। इसकी जानकारी पहली बार आज मुझे हासिल हुई है। और सीआईएसएफ के द्वारा दी जा रही एंटी टेरर कंसल्टेंसी का लाभ मुझे यह बताया गया है कि इन्फोसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी अब प्राप्त हो रहा है, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की एक मानी जानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए प्रारंभ में ही मैंने कहा कि आपकी भूमिका बहुआयामी हो चुकी है, मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि यदि सीआईएसएफ
अपनी कंसल्टेंसी की मार्केटिंग, क्योंकि आजकल यह मार्केटिंग का जमाना है, ठीक तरीके से यह सीआईएसएफ अपने कंसल्टेंसी की यदि मार्केटिंग करे तो केवल भारत में ही आपके कंसल्टेंसी सर्विसेज की डिमांड नहीं होगी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी आपके कंसल्टेंसी सर्विसेज की डिमांड होगी। यह मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आपके ऊपर हमें नाज है, जैसा मैंने पहले कहा था, और मैं यह कहना चाहता हूं कि सीआईएसएफ ऐसे चुनिंदा सिक्योरिटी फोर्सेज में है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आप बेहतर प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय आपके महानिदेशक के द्वारा भाषण किया जा रहा था उसको मैं बहुत ही गौर से मैं सुन रहा था। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस बार हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट में आपका हिस्सा पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ा है। मैं नहीं कह सकता कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप है या नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वह बढ़ा है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ स्थान भी हमारे सीआईएसएफ में रिक्त हैं, लेकिन वह बड़ी संख्या में नहीं है। कई ऐसे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर कि यह वैकेंसीज कुछ अधिक हैं, लेकिन मुझे संतोष है कि यहां पर केवल 5000 वैकेंसीज हैं। लेकिन यदि महानिदेशक और यहाँ के अधिकारी वर्ग यह फैसला कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी यह सारे के सारे रिक्त स्थान भरे जा सकते हैं और 5000 लोगों को यह रोजगार भी मिल सकता है। जिस समय आपके महानिदेशक की स्पीच हो रही थी, अपनी स्पीच में उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि दिल्ली मेट्रो पर आप किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली यह भारत की राजधानी है और यहां पर जिस भी प्रकार की आपकी भूमिका रहती है उस भूमिका की सराहना वह सर्वत्र होती है, देश के कोने कोने में होती है। और वहां पर दिल्ली मेट्रो पर जिस तरीके से आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं मुझसे स्वयं लोगों ने चर्चा की है कि और आपकी प्रशंसा की है। यह जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली मेट्रो पर जो आपकी भूमिका है, महिलाओं को जिस तरीके से आप सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, जिस संवेदनशीलता के साथ आप उनको सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, आप सीआईएसएफ के जवानों के प्रति लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास यह बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूं सबसे बड़ी पूंजी इस ऑर्गेनाइजेशन की यही है कि वह हिंदुस्तान की जनता का भरोसा, इस हिंदुस्तान की जनता का विश्वास जीतने में निरंतर कामयाबी हासिल करती जा रही है और इसके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी पूंजी आपकी यही है। हमारी सरकार भारत को दुनिया के विकसित देशों की कतार में ही नहीं खड़ा करना चाहती, बल्कि हम भारत को एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यदि हम भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तेजी से विकास के चक्के को भी हमको चलाना होगा। लेकिन विकास का चक्का चले, संपत्ति सृजित हो, तो उसके साथ यह भी आवश्यक है कि उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। प्रगति हो, लेकिन प्रगति के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और उस जिम्मेदारी को, सुरक्षा की जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं। तो हमसे कोई पूछे कि वास्तव में हिंदुस्तान की प्रगति का सजग प्रहरी कौन है, तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की प्रगति का सजग प्रहरी यदि कोई है तो हमारा सीआईएसएफ का जवान है। प्रगति का सजग प्रहरी कोई है तो सीआईएसएफ का जवान है। सीआईएसएफ के सभी अधिकारीगण, सभी बहादुर नौजवानों, आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने उद्बोधन के अंत में मैं पुनः अपनी उस बात को दोहराना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच आकर मैं बेहद संतुष्ट हूं और अपेक्षा ही नहीं बल्कि अपेक्षा से अधिक मैंने आप सबको यहां पर परफॉर्म करते हुए पाया है, अपेक्षा से अधिक। इसलिए पुनः इस 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर
आप सबको बधाई देता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि ईश्वर आपके अंदर एक ऐसी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा पैदा करे कि भारत के लोगों का और अधिक भरोसा और विश्वास जीतने में आप कामयाबी हासिल कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। May I now request Shri Arvind Ranjan, Director General CISF, to present a small memento as a token of our regard and gratitude to our chief guest, Shri Rajnath Singh, Union Home Minister, Government of India. धन्यवाद महोदय। परेड कमांडर ने निशान टोली को कूच करने का आदेश दिया। आप सभी से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में परेड कमांडर के कमांड के उपरांत अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें। निशान को सम्मान देंगे। जनरल सैल्यूट। परेड कमांडर श्री दिलीप कुमार कमांडेंट मुख्य अतिथि महोदय से परेड को कूच करने की आज्ञा लेने हेतु सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय से परेड कूच करने की आज्ञा लेने के पश्चात परेड कमांडर श्री दिलीप कुमार कमांडेंट चुस्त व सधे हुए कदमों से वापस अपने स्थान की ओर बढ़ते हुए ऑफिसर्स वापस खींच। परेड कमांडर द्वारा परेड 2IC को परेड की बागडोर सौंपी गई और अब परेड विसर्जन को तैयार। बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन विजय भारत पर परेड सिलसिलेवार एवं अनुशासित तरीके से विसर्जित होती हुई तना सीना, नजर सामने, अडिग शरीर, बदन पर पूर्णतः नियंत्रण रखते अपने मजबूत इरादों से आगे बढ़ते हुए ये जवान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 21वीं सदी में नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए पूर्णतः तैयार एवं प्रतिबद्ध। आपस में समान दूरी रखते ये जवान डंके की चोट पर एक साथ कदमों की थाप से धरती मां को सहलाते।
आगे बढ़ते रहने की तमन्ना दिल में संजोए हुए उन हजारों शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने इस वतन को आजादी दिलाने के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसका यह अद्भुत उदाहरण है यह स्थापना दिवस पर। सीना है फौलाद सा अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। और अब आपके समक्ष सीआईएसएफ की क्षमता एवं दक्षता को प्रदर्शित करने वाले कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किए जाएंगे। इस श्रृंखला में सबसे आगे है साइलेंट ड्रिल। इसका उद्देश्य एक टुकड़ी के द्वारा अनुशासन तथा आपसी तालमेल कायम रखते हुए बल के प्रशिक्षण स्तर तथा प्रोफेशनलिज्म को प्रस्तुत करना है। इस कवायद में बिना किसी मौखिक आदेश के कैलकुलेटेड मूवमेंट की श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाता है। This drill originated from the Marines' Silent Drill Platoon, which began in 1948 when the Marines performed their very first drill team show in Washington, D.C. Since then, the Marine Security Force Battalion has created a team to carry on the tradition. अभ्यास के हैरत अंगेज कार्य को साधते सीआईएसएफ बल सदस्य छोटी छोटी टुकड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण तथा दूसरों की राह में बाधा बनने से परहेज की प्रवृत्ति को रेखांकित करती। सीआईएसएफ के समर्पित बल सदस्यों ने इस ड्रिल को बखूबी अपनाया। The silent drill platoon exemplifies the discipline, precision, and skill. Members of the silent drill platoon are handpicked to represent the force. समंदर की उठती गिरती लहरों का प्रतिबिंब। इसमें सौम्यता है, समरूपता है और विशालता है। श्रृंगार रत यह परिसर उम्मीदों की नए बयार से बल सदस्यों को स्पर्श कर रहा है। आज इनके हथियार आह्लादित होकर महत्वाकांक्षाओं के पंख फैलाकर गगन को चूमना चाहते हैं, अंधकार को भेदना चाहते हैं और प्रकाश को हाथ फैलाकर समेट लेना चाहते हैं। एक दूसरे के ऊपर निर्भरता एवं उनकी उपस्थिति में महसूस किए जाने वाले संबल को राइफल एंथम में निरूपित किया गया है। साइलेंट ड्रिल अपने साथी के ऊपर विश्वास, अपने हथियार पर पूर्ण नियंत्रण, समूह में काम करने तथा अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करने के लिए सभी इकाइयों की एक समान प्रतिबद्धता को अंकित करता है। सीआईएसएफ में इन मूल्यों को दिए जाने वाली प्राथमिकता का जीवंत उदाहरण है यह ड्रिल। इस ड्रिल का खूबसूरत मंजर आपकी आंखों के सामने गुजरता हुआ और इसके विविध रंग एक सार्थक आकार प्राप्त करते हुए। प्रदर्शन के अंतिम चरण में आप देखेंगे एक अद्भुत तथा हैरत अंगेज दृश्य। घूमते हुए तथा उछलते हुए हथियारों के मध्य से गुजरते हुए इस दल के अधिकारी। सघन अभ्यास के पश्चात तालमेल का ऐसा स्तर भी प्राप्त किया जा सकता है जहां दो जवानों के हथियार आपस में बिना टकराए अपने अधिकारी के लिए रास्ता बना दें।
आज ये हथियार भी अपनी स्वामी भक्ति से अभिभूत है। राइफल एंथम में कहा गया है, माई राइफल इज माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज माई लाइफ। आई मस्ट मास्टर इट एज आई मस्ट मास्टर माई लाइफ। माई राइफल विदाउट मी इज यूजलेस, विदाउट माई राइफल आई एम यूजलेस। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आपका ध्यान किले की दीवार की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जहां सीआईएसएफ की महिला कमांडोज बिल्डिंग, रैपलिंग एवं क्लाइंबिंग के प्रदर्शन के लिए तैयार है। किसी पहाड़ी अथवा ऊंची दीवार से नीचे उतरने की कला का प्रदर्शन। इनवर्स रैपलिंग के माध्यम से दुश्मन को अचंभित कर उस पर वर्चस्व हासिल करने में रैपलिंग की यह विधि कारगर सिद्ध होती है। अर्बन वारफेयर टैक्टिक्स का अभिन्न हिस्सा है इनवर्स रैपलिंग। साइड रैपलिंग के माध्यम से दुर्गम स्थानों तक पहुंचा जा सकता है। संकरे रास्ते से जब गुजरना अपरिहार्य हो जाए तो अब स्वयं को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन तक पहुंचने की कला है स्टमक रैपलिंग। बिना कैराबिनर अथवा किसी सपोर्ट के नीचे उतरने की कला वह कमांडो ही आत्मसात कर पाता है, जिसमें अद्भुत साहस एवं जुनून होता है। और अब स्लेटरिंग। सीआईएसएफ की महिला बल सदस्यों की भूमिका इसमें अग्रणी है। यह प्रदर्शन इस सोच को बलवती बनाती है कि ऐसी कोई भी चुनौती नहीं जो इनके जोश के सामने दम न तोड़े। इस प्रस्तुति में शामिल महिला कमांडोज सीआईएसएफ की विभिन्न इकाइयों से है, जो उनकी कर्तव्य निष्ठता एवं साहस को रेखांकित करती है। Presenting our next demonstration on fire and rescue operations. Two firefighters wearing fire entry suits are entering the fire zone. Fire entry suit can withstand a temperature of 900 degrees centigrade for about 2 to 3 minutes. These suits are highly engineered to support the most extreme conditions with 8 layers of insulations and fully insulated hood, mitts, boots and soles. It weighs approximately 28 kgs. Two firefighters with AFT approaches the fire spot on motorcycle. Advanced firefighting technology uses water in the form of mist cum foam and extinguishes fire by emulsification and compressed air foam suppression technique. The next event is flange firefighting using AFT curtain branch and fire proximity suit. Firefighter carry out firefighting by the use of fast action nozzle from ground floor and by directing foam with the use of AFT. Water spray is used to contain fire in the structure and prevent it from spreading to adjacent structures. Such fire cannot be extinguished as long as the supply is terminated. As such, a person wearing proximity suit approaches and closes the supply line wall, and this mitigates the fire emergency. The next scenario is that of a building engulfed in fire. Trapped persons on the second floor being persuaded to jump on the jumping cushion. Responders trying to gain access using quick ascender. One after another, 2 responders evacuated using the jumping cushion. The Power Quick Ascender is battery-powered device capable of lowering and retrieving 1 or 2 people at a time. The ascender can be operated by the rescuer. The responder who had earlier gained access using Power Quick Ascender is now ready for descending, along with the casualty wrapped in a rolling rescue stretcher. Ascender has successfully landed.
It can carry up to 3 personnel's load and ascending speed is 0.6 feet per second, whereas the descending speed is 1 feet per second. The stretcher party carries the victim for further necessary pre-hospital care. With that ends the fire and rescue demonstrations. डेमोन्स्ट्रेशन की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति 1 मिनट ड्रिल, ब्लाइंड फोल्डेड स्ट्रिपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ वेपन्स। बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनजर उचित प्रशिक्षण देकर इन्हें दक्ष, कार्यकुशल एवं फील्ड क्राफ्ट में विभिन्न तकनीकों से निपुण बनाया जा रहा है। इसी ड्रिल की एक झलक ब्लाइंड फोल्डेड स्ट्रिपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ वेपन्स आपके समक्ष प्रस्तुत है। बल सदस्यों के सम्मुख प्रयोग में लाए जाने वाले 3 हथियार क्रमशः 9mm पिस्टल ऑटो तथा कार्बाइन एवं 5.56 इंसास रखा गया है। अभी इनके द्वारा इन हथियारों को खोलकर उनके पुर्जों को आपस में मिला दिया जाएगा और इनके समक्ष पुर्जों को आंख पर पट्टी लगाकर उनके संगत हथियारों में दाखिल करने की चुनौती है। पुर्जों को आपस में मिलाया गया और अब 1 मिनट ड्रिल के अंतर्गत दिलचस्प प्रतिस्पर्धा का आगाज। खास बात यह है कि त्वरित गति से इस कार्य को पूरा करने की होड़ लग गई है, लेकिन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को अहमियत दी जा रही है। जब कभी रात के समय उस वक्त हमला हो जाए जब जवानों के हथियार सफाई के लिए खुले हुए हो, या रात के समय हथियार में किसी रोग को दूर करने के लिए उसका खोलना अनिवार्य हो जाए, ऐसी स्थिति में न्यूनतम समय में अपने हथियार को खोलना जोड़ना रण कौशल का अभिन्न अंग है। इस तरह के ड्रिल को अमल में लाकर जवानों के स्टीरियोग्नोसिस में अभिवृद्धि की जाती है। स्टीरियोग्नोसिस एक ऐसी मनोवैज्ञानिक क्षमता है जहां आवाज एवं दृष्टि के अभाव में छूकर परिचित वस्तुओं को पहचाना जाता है। दर्शकों को मैं बता दूं कि इस ड्रिल को 1 मिनट के भीतर ही पूरा किया गया। अगली प्रस्तुति वीआईपी सुरक्षा एक चुनौती। एक चुनौती अज्ञात हमलावरों एवं उनकी साजिश से पूरी क्षमता एवं निपुणता से निपटने की। एक चुनौती उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की, क्योंकि इन्हीं खतरों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इसी विशेष प्रशिक्षण पर आधारित एक प्रदर्शन जिसमें वीआईपी के ऊपर जनसभा को संबोधित करते वक्त सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनको इवैक्यूएट करते समय तथा उनके कार के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले रास्ते पर संभावित हमले से निपटने का प्रदर्शन। रास्ते में एम्बुश अटैक जैसी स्थितियों में अपने जान की बाजी लगाकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जा रहा है। अलग अलग वीआईपी पर अलग अलग स्थितियों में संभावित खतरों तथा कंटीजेंसी प्लान को एक प्रस्तुति में सम्मिलित रूप से दिखाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं वीआईपी के आगमन से पूर्व आयोजन स्थल पर स्थानीय पुलिस की तैनाती जनसमूह तथा मंच की निगरानी हेतु की गई है। इसके अलावा पीएसओ टीम से ही तैनात एडवांस ऑफिसर जो कि कार्यक्रम से 4 या 5 घंटे पहले आयोजन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता है। आवश्यक सिक्योरिटी सुपरविजन एवं वीआईपी के स्वागत हेतु स्वागत पंक्ति में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, नेताओं तथा उनके द्वारा भेंट किए जाने वाले फूल मालाओं की जांच करते हुए तथा अब वीआईपी वाहन को रोकने हेतु निर्धारित स्थान का संकेत करने हेतु सतर्क एवं चौकन्ना खड़ा। संपूर्ण कार्रवाई के लिए मैं आपका ध्यान मैदान की बाईं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां से वीआईपी का कारकेड स्ट्रैटेजिक ऑर्डर में सभा स्थल की ओर आता हुआ सबसे पहले पायलट कार स्थानीय पुलिस के अधिकारी सवार है, जिनका मुख्य कार्य है वीआईपी कारकेड को सभा स्थल तक का रास्ता दिखाना एवं रोड क्लियरेंस कराना। पायलट कार के पीछे मेन कार जिसमें वीआईपी तथा पीएसओ टीम के इंचार्ज सवार है तथा उसके पीछे स्कॉट कार जिसमें अन्य पीएसओ सवार है। और अब आप देख सकते हैं स्कॉट कार से पीएसओ नीचे उतरकर फेंडर वॉक करते हुए ताकि कोई अवांछनीय तत्व वीआईपी कार तक न पहुंच सके।
यहाँ आप देख रहे हैं पायलट कार में सवार पायलट ऑफिसर चलती हुई पायलट व्हीकल से बाहर निकलकर कारकेड के गंतव्य सभा स्थल पर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखते हुए एवं किसी भी संभावित खतरे का असेसमेंट करते हुए और अब कारकेड सभा स्थल के समीप पहुंचता हुआ वीआईपी के मंच से नजदीक पहुंचने से पहले एडवांस ऑफिसर ने मेन कार के रुकने की जगह का इशारा किया, जिस पर प्रशिक्षित पीएसओ कार को सुरक्षा घेरे में लेकर चारों तरफ से स्थिति का जायजा लिया था। संकेत मिलने पर पीएसओ टीम के प्रभारी मेन कार से नीचे उतरते हुए वीआईपी ने भीड़ से अभिवादन स्वीकार किया और इसी बीच भीड़ से एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग का प्रयास, जिसे सतर्क पीएसओ ने तुरंत न्यूट्रलाइज किया। पीएसओ की सतर्क निगाहों ने उसे देखा और उसे तुरंत मार गिराया। इवैक्यूएट करते समय भीड़ से ही एक व्यक्ति द्वारा ग्रेनेड फेंका गया, जिसे सतर्क पीएसओ ने तुरंत कैच किया और उसके ऊपर लेट जाता है। इवैक्यूएट करते हुए वीआईपी एवं पीएसओ टीम पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसे राइट लीड ने अपनी सतर्क निगाहों से देखा और तत्काल साउंड ऑफ करके अन्य पीएसओ को खतरे की दिशा एवं प्रकार को बताया। अन्य कोई विकल्प नहीं देखते हुए ग्रेनेड को हाथ से कैच करके उसके ब्लास्टिंग इफेक्ट को कम करने के लिए उस पर लेट जाता है। ग्रेनेड ब्लास्ट हो चुका है। राइट लीड की बॉडी छत विछत हो चुकी है, जो कि वीआईपी तथा अपने ड्यूटी के प्रति समर्पण एवं उच्च बलिदान का प्रतीक है। एडवांस ऑफिसर ने फुर्ती के साथ अटैकर को धराशायी किया। वीआईपी को तुरंत गाड़ी दिखाया और सेफ हाउस की तरफ बढ़ गया। टारगेट सेफ हाउस की तरफ। वीआईपी सुरक्षा का मूल मंत्र सही स्थान पर सही निर्णय एवं दुरुस्त कार्रवाई। और अब वीआईपी का कारकेड सेफ हाउस की तरफ बढ़ता हुआ। अब मैं आपका ध्यान मैदान की बाईं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां पर वीआईपी कारकेड पर बाईं ओर से आर्म्स अटैक का प्रयास से पायलट कार में सवार पीएसओ ने बड़ी कुशलतापूर्वक बर्बाद किया। स्क्वाड कार ने मेन कार को कवर किया। पुनः वीआईपी कार तेजी के साथ सेफ हाउस पर बढ़ता हुआ एक बार फिर वीआईपी कार के पास चंबित कर देने वाला एम्बुश अटैक में ट्रक द्वारा रोड ब्लॉक करने का प्रयास और अंधाधुंध फायरिंग। पायलट कार में सवार पीएसओ के द्वारा बहुत ही बड़े तरीके से 180 डिग्री का हैरत अंगेज टर्न। अभी आपने देखा 180 डिग्री का अबाउट टर्न और वीआईपी को सेफ हाउस की तरफ ले जाने का प्रयास। इस तरीके से वीआईपी को सेफ हाउस की तरफ ले जाया गया। कई प्रकार के खतरों को नाकाम करते हुए वीआईपी सुरक्षा में प्रशिक्षित पीएसओ एवं एविएसिव एंड डिफेंसिव ड्राइविंग में स्किल ड्राइवर, स्कॉट और पायलट कार द्वारा मेन कार को कवर देते हुए वीआईपी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस प्रदर्शन को वीआईपी सिक्योरिटी विंग देवली के द्वारा अशोक जलवानिया उप कमांडेंट के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, may I request you all to be kindly seated till the chief guest leaves the premises. May I now request all our guests to kindly join us for high tea. इसके साथ ही मैं राकेश कुमार सहायक कमांडेंट अपनी साथी उद्घोषिका उप निरीक्षक शाहीन के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। Thank you. Jai Hind.